Welcome you all in NIOS with Vision Point. I am here at Secretaria, your accounts trader. We are going to start a new chapter which named as depreciation. Depreciation means, what do you mean by this depreciation? Maybe you have heard about this word before your life, but it's useful in accounting sense. As depreciation means in literal meaning, if we need to know, depreciation means the reduction in the value of fixed assets. The reduction in the value of fixed assets, right? Value of fixed assets. फिक्स एसेट्स आपके बिजनेस की कुछ भी हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, मेरे लिए ये बोर्ड फिक्स एसेट्स है, मेरे लिए ये पेन फिक्स एसेट्स है. एनीथिंग इज फिक्स एसेट्स फॉर योर ओन बिजनेस. जब उसकी वैल्यू में कमी आती है, उसकी कीमत में कमी आती है, उसके यूजेज में कमी आती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? डेप्रीसिएशन बोलते हैं. तो व्हाट डू यू मीन बाय डेप्रीसिएशन? डेप्रीसिएशन मीन्स reduction in the value of your fixed assets, either your furniture, either your gold chain, either your house, whatever is. जिसमें भी वैल्यू में कमी आने का जो टर्म होता है उसको क्या कहा जाता है? डेप्रिसिएशन इन अ लिटरल सेंस. In accounting sense, it is also the reduction in the value of assets, but many more things creates in accounts. For example, इन एवरी बिजनेस देयर आर सर्टेन असेट्स. हर एक बिजनेस में हम कोई ना कोई असेट्स तो यूज करते ही करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो व्हाट एम आई यूजिंग? आई एम यूजिंग दिस माइक, आई एम यूजिंग दिस पेन, आई एम यूजिंग दिस बोर्ड. दीज आर माई फिक्स्ड असेट्स. If somebody is treating in the shop who is having a furniture, who is having table, they are using these fixed assets. The person who is having transport business, they are having so many trucks and the cars for their fixed assets. So assets may be anything which you are using for your business. तो कोई भी assets जो business में हम use कर रहे हैं, but it reduces its value because of what? Because of wear and tear, because of it's out of fashion. नए नए ट्रेंड में चीज़ें आ रही हैं, वो चीज़ आउट हो जा रही हैं. तो ये बहुत सारी रीजंस होते हैं जिनकी वजह से उनके जो वैल्यू होती है उसमें रिडक्शन होते हैं. In every business, there are certain assets of the fixed nature that are needed for conduct of the business operation. We need it for the business to operate. Example to say, assets are building, plant, cycle, motor vehicle, furniture, anything, whatever we are using in the sense of assets. As here mentions the fixed assets, whatever you are using in your business. But these are the equipments is also known as an assets. For a singer, what's her assets or his assets? Their thought, singing sense is their assets, right? अब एक्टर के लिए या एक्ट्रेस के लिए क्या है? उनके लिए उनकी assets क्या है? उनकी यंग एज है, उनका टैलेंट है. सिंगर के लिए उनका थॉट है. तो दैट आर द थिंग्स. सबके लिए assets का सेंस क्या होता है? अलग अलग होता है. और असेट्स हर एक बिजनेस में नीडेड होती है और उसी में क्या होती है? वैल्यू उसकी रिड्यूस्ड होती जाती है. द रिडक्शन इज नोन एज द डेप्रीसिएशन. फॉल इन द वैल्यू ऑफ एंड द यूटिलिटी उसकी धीरे धीरे क्या होती जा रही? कम होती जा रही है. कैसे कम हो रही है? या तो हम कांस्टेंट उसका यूज कर रहे हैं इसलिए कम हो रही है, या फिर एक्सपायरी ऑफ टाइम. कभी कभी हम लोग यूज नहीं करते लेकिन वो क्या हो जाता है? एक्सपायर हो जाता है. उसका डेट जो मैन्युफैक्चरिंग है वो एक्सपायर हो जाता है और वो यूजलेस हो जाता है हमारे लिए. ठीक है. इन अदर वर्ड, द प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ओवर इट्स यूसेस लाइफ इज नोन एज अ डेप्रीसिएशन. If somebody asked you, if there is an equation to ask on paper that what is depreciation, you need to write only the word. The depreciation is the total loss of a business. It is the amount which is reduction in the value of the fixed assets, either by the constant uses or expiry of the period of time. Right? This is known as depreciation. अब depreciation हमारे अकाउंट्स में क्या कर रहा है? हमें अकाउंटिंग सेंस में depreciation को क्या करना है? हम जब assets को खरीदते हैं और हम ये मान के चलते हैं ये हमारी assets आने वाले 10 years तक हमारे साथ देगी, और आफ्टर 10 years ये क्या करेगी? सपोज दैट हम लोगों ने 1 लाख की कोई assets खरीदी
और वो हमारे साथ 10 साल तक रहेगी, और 10 साल के बाद जब हम उस एसेट को बेचने जाएंगे उससे हमें 1,000 रुपये की वैल्यू मिलेगी। तो आई यूज 2 अमाउंट, फर्स्ट अमाउंट 1,00,000 की खरीदी और 10 साल के बाद बेचेंगे तो उसमें कितना पैसा बचेगा, ओनली 1,000। तो ये जो 1,00,000 और 1,000 इन अमाउंट्स के नाम हैं, अकाउंट्स में ये दोनों अमाउंट के नाम हैं। जितने का हम असेट्स खरीदते हैं, ठीक है, वो हमारी क्या है, बाइंग वैल्यू है, उतने के हमने असेट्स को खरीद लिया। और जो 1,000 रुपये है हमारे, वो स्क्रैप वैल्यू है। व्हाट इज दैट, स्क्रैप वैल्यू। अगर क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू दिया है, रिड्यूशियल वैल्यू दिया है, बोथ आर द वैल्यू आर द सेम, ठीक है, बची हुई वैल्यू। नेक्स्ट में क्या है, अब क्यों होता है डिप्रिसिएशन, कैसे लग जाता है डिप्रिसिएशन। फर्स्ट आई टोल्ड यू ओवर देयर फॉर द कांस्टेंट यूज, हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूटी में यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गोल्ड चेन पहनते हो, आपने आज गोल्ड चेन डाली और वो अगर आप 15 ईयर्स के बाद उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, टाइम के बीतने से वो घिसती जाती है पहनते पहनते, तो वो क्या हो गई, वैल्यू में कमी आ गई। तो कैसे, कांस्टेंट यूज, आप कार चला रहे हैं, उसके टायर्स क्या हो रहे हैं, घिस रहे हैं। तो ड्यू टू द कांस्टेंट यूज की वजह से, और द फिक्स्ड एसेट्स इन द बिजनेस ऑपरेशंस, वियर एंड टियर टूट गई, arise in them, their results in the reduction in the value, किसी भी रीजन से रिडक्शन हो रहा है वैल्यू में। expiry of time, the value of majority of the asset decreases with the passage of time, even they are not being put to use in the business. Natural forces such as rain, wind, weather etc contributed deterioration of their value, उसकी वजह से जंग लग गया, खराब हो गई, whatsoever। नेक्स्ट क्या है, एक्सपायरी ऑफ लीगल राइट। आप लाइसेंस ले रहे हो, आपको लाइसेंस 20 साल के लिए अलॉट हो गया, 20 साल के बाद अब अभी तक आप यूज नहीं कर पाए, तो नोबडी कैन स्टॉप यू टू होल्ड दैट। आपका 20 साल में वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। देयर आर सर्टेन एसेट्स व्हिच हैव डिफाइंड स्पैन ऑफ लाइफ सच एज लीज, राइट। इफ द लीज हैज बीन ऑब्टेन फॉर 20 ईयर्स, आपने किसी का लैंड लिया था लीज पर 20 ईयर्स के लिए, अब 20 ईयर्स के खत्म होने पर ऑटोमेटिक उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी, वो क्या हो गई, आपकी डेप्रिशिएटेड होती जा रही है। दीज आर सम रीजंस ऑफ डेप्रिसिएशन। बाय ऑब्सोलेंस, ऑब्सोलेंस आउट ऑफ फैशन। बाय एक्सीडेंट, कार का मेरी एक्सीडेंट हो जाता है तो वो एक्सीडेंटल हो गई, उसकी वैल्यू जितनी थी उतनी तो मिलेगी नहीं, उससे रिड्यूस्ड वैल्यू मिलेगी। डिप्लेशन, खत्म हो गई। फॉर एग्जाम्पल, एक लैंड है, उसके अंदर से हम लोग ऑयल डिग करते हैं, ऑयल वेल है, निकालते निकालते वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। परमानेंट फॉल इन द मार्केट प्राइस इज रिड्यूसिंग डे बाय डे। दीज आर द कॉजेस ऑफ हैविंग depreciation, right? So first we need to know what are the causes. By constant use, by expiry of time, the expiry of legal rights, obsolescence, accident, depletion and permanent fall in the market price. ये हमारे कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से हमें डेप्रिसिएशन लगाना पड़ता है अपने किसी भी बिजनेस कंसर्न में, ठीक है। अब बात आती है मेथड्स कौन से हमें यूज़ करने हैं। डेप्रिसिएशन के लिए हमें कुछ मेथड्स यूज़ करने होते हैं। जैसे अभी है तो इतने सारे मेथड दिख रहे हैं, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ 2 मेथड्स पढ़ने होते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ये 2 मेथड्स हैं जो हमसे पूछे जाएंगे। ये सारे मेथड्स के सिर्फ हमें नाम पता होने चाहिए। ये बीकॉम में हम लोग पढ़ते हैं, अभी हमारे क्लासेस में ये नहीं है। जब हम बीकॉम में आ जाएंगे तो हमें ये मेथड्स पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है, नाम से स्ट्रेट लाइन। आज अगर आपने 1 लाख रुपीज़ की कोई एसेट्स खरीदी तो 1 लाख रुपीज़ पे अगर आपने कहना है कि 10% का डेप्रिसिएशन लगेगा, कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, 10% का, दैट इज 10,000। तो यही 10,000 लगातार हर साल लगता जाएगा। फर्स्ट ईयर भी 10,000 था, सेकेंड ईयर भी 10,000 रहेगा, थर्ड ईयर भी 10,000 लगेगा, आने वाले दैट इज 10 सालों तक अगर ये एसेट्स यूज हो, 10 सालों तक 10,000 लगता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, ये क्या है, हमारी वैल्यू ऑफ एसेट्स है, वैल्यू ऑफ एसेट्स है, ठीक है। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड। फर्स्ट मेथड सीखेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड, वेरी इजी, वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। स्ट्रेट लाइन मेथड में जो हम पढ़ेंगे, पहले ये फॉर्मेट है आपका डेप्रिसिएशन का, इसको नोट डाउन कर लीजिए। फॉर्मेट कैसा बनेगा, जैसे लेजर बनता था,
डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, JF नहीं था, वहां पे JF था, यहाँ पे JF नहीं है. दिस विल बी योर फॉर्मेट, राइट. फर्स्ट मेथड हम लोग कौन सा पढ़ने जा रहे हैं? स्ट्रेट लाइन मेथड. स्ट्रेट लाइन मेथड में मैंने एग्जाम्पल क्या यूज कर रही हूँ, 1 लाख की एसेट्स खरीदी और 10 साल वो चलेगी. 1 लाख की एसेट्स में 10 हज़ार का 10 साल तक लगातार आप डेप्रीसिएशन काटते जाइए. 1 लाख से 10,000 हटाए 90 से हटाए 80 से हटाए 70, ऐसे करते करते 10th ईयर इट विल बी 0. तो इसको हम लोग जीरो बैलेंस मेथड भी कहते हैं. ठीक है, पहले क्या क्या कहते हैं ये देखते हैं. दिस मेथड इज ऑल्सो टर्म्ड एज ओरिजिनल कॉस्ट मेथड. इसको क्या कहा जाता है? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड. अंडर दिस मेथड डेप्रीसिएशन इज चार्ज एट अ फिक्स परसेंटेज. एक बार जो लगा दिया वो लगा दिया, और वो भी कौन से प्राइस में? जितने में हम खरीदेंगे. ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स में हम लोग ने 1 लाख की एसेट्स खरीदी, 10% का डेप्रीसिएशन, तो 1 लाख पे 10% लगाया, 10,000 आ गया. तो वहीं 10,000 हमारा क्या है? हर साल का एक डेप्रीसिएशन, हर साल का. इसका मतलब फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी इसको कहते हैं, क्योंकि एक बार डेप्रीसिएशन लगा दिया, हर साल वही डेप्रीसिएशन रिपीटेडली चलता जाएगा. ओरिजिनल कॉस्ट एसेट्स, द अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन रिमेन्स इक्वल. जो अमाउंट है डेप्रीसिएशन की, ठीक है, द अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन रिमेन कांस्टेंट फॉर ईयर बाय ईयर, इक्वल फ्रॉम ईयर टू ईयर. कुछ समझ आ रहा है? इसलिए इसको इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहा जाता है. अब स्ट्रेट लाइन मेथड है, इसका नाम फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी रख दिया हमने, क्योंकि एक बार फिक्स्ड तो हो गई, हर साल सेम टू सेम लगता आ रहा है, तो इक्वल भी हो गया. और जीरो बैलेंस मेथड भी कहते हैं, और ओरिजिनल कॉस्ट वैल्यू मेथड भी कहते हैं. तो दीज आर द नेम ऑफ द स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड. डोंट बी कंफ्यूज. अगर स्ट्रेट लाइन मेथड पूछा है तो इन नामों से भी उसको जाना जाता है, राइट. ये आपका हो गया ओवरऑल स्ट्रेट लाइन मेथड. अगर आपको बोला गया है कि असेट्स की वैल्यू 1 लाख है, आपको उस असेट्स के ऊपर 10% का डेप्रीसिएशन चार्ज करना है, रेट दे रखा है, तो आपने 10% उसका निकालिए, 10,000 रुपये आ गए. लेकिन अगर रेट ना दिया होता क्वेश्चन में, तो हम क्या करते? ठीक है, जब रेट नहीं दिया रहेगा तो हम तो कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो कैसे करेंगे? इसमें हम लोगों को एक फॉर्मूला दिया गया है, और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें अपने डेप्रीसिएशन को कैलकुलेट करना है. तो फॉर्मूला क्या है हमारा? अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन जो आएगा हमारा क्या आएगा? अभी हम रेट के लिए नहीं बात कर रहे हैं, किसके लिए बात कर रहे हैं? अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन. अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन कैसे आएगा? जैसे अगर क्वेश्चन में दिया होता 1 लाख की एसेट्स पर 10% निकालिए, तो सिंपल आप क्या करते? 1 लाख पे 10% निकाल के 10,000 रख देते, तो हमारा ये अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन निकल आता. लेकिन क्वेश्चन में अगर नहीं दिया रहेगा ये 10%, तो ये 10,000 हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास? ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द असेट्स, असेट्स की ओरिजिनल कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू. स्क्रैप वैल्यू मैंने आपको बताया था, दो अमाउंट लिखी, 1 लाख एक 1,000 रुपये. स्क्रैप वैल्यू किसका नाम था? उस 1,000 का, जो एंड ऑफ द पीरियड में यूज करते करते जो वैल्यू बच जाता है हमारा, दैट बचा हुआ वैल्यू इज नोन एज द स्क्रैप वैल्यू, जिसको हम लोग रेसिड्यू वैल्यू भी कहेंगे. ठीक है, अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ. मैंने बार बार वर्ड यूज किया, 10 साल 10 साल 10 साल. 1 लाख के एसेट्स को कितने साल यूज करेंगे? 10 साल. तो एस्टिमेटेड लाइफ कितनी हो गई? 10 ईयर्स. अमाउंट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ. जब ये फॉर्मूला पुट करेंगे, इस फॉर्मूला पुट करने के बाद जो हमारा आएगा अमाउंट, दैट अमाउंट विल बी नोन एज द अमाउंट ऑफ द assets, sorry, depreciation, right? Now take an example. अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे और एक एग्जाम्पल को फॉलो करते हुए इसकी सोल्यूशन को देखेंगे कैसे किया जाता है. ठीक है, होप फॉर द बेस्ट कि आप भी हमारे साथ कॉपी पेन लेकर बैठोगे. अभी तक जो पढ़ा पहले एक बार स्मॉल रिवाइज, उसके बाद इस क्वेश्चन में हम लोग आते हैं. ठीक है, हम लोग अभी चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? डेप्रीसिएशन पढ़ रहे हैं. ठीक है, डेप्रीसिएशन क्या होता है? जब किसी भी फिक्स असेट्स की वैल्यू में कमी आती है, दैट कमी, वो जो आ रही है कमी, उसको क्या कहा जाता है? उसको डेप्रीसिएशन कहा जाता है. ठीक है, वो किसी भी रीजन से हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, कांस्टेंट यूज कर रहे हैं हम, एक्सपायरी ऑफ टाइम हो गया है, या कोई लीगल राइट खत्म हो गया है, आउट ऑफ फैशन हो गया है,
एक्सीडेंटल हो गई है, डिप्लेशन हो गया है, तो परमानेंट हमारा फॉल हो रहा है मार्केट के प्राइस में, ठीक है। उसके बाद फॉर एग्जांपल आपने एक फ़ोन खरीदा जिसकी वैल्यू थी 27,000, 2 साल के बाद आप फ़ोन उसके बेच के 27,000 में बिक जाएगा, इट विल रिड्यूस इट्स वैल्यू। और या तो एक काम करो, यूज़ मत करो फ़ोन लेकर के सिर्फ रख दो, 10 महीने के बाद क्या तो बेचना है फ़ोन, क्या उतनी ही वैल्यू मिलेगी जितनी वैल्यू को आपने खरीदा था? नो, नॉट एट ऑल। वैल्यू क्या होगी? रिड्यूस होगी, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में आ गए, तो उसकी वजह से, नए प्रोडक्ट आने की वजह से आपके फ़ोन की वैल्यू में कमी आ गई। तो वो क्या है, जो कमी आ रही है पैसे में, वो क्या कहला रहा है? डेप्रिसिएशन, ठीक है। हम लोग कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं? स्ट्रेट लाइन मेथड। दिस विल बी आवर फॉर्मेट। स्ट्रेट लाइन मेथड को हम लोगों को पता है और भी बहुत कुछ कहा जाता है, जैसे कि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, या फिर जीरो बैलेंस मेथड। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से मेथड में जो अमाउंट ऑफ असेट्स होती है वो एंड में आ करके ज़ीरो हो जाती है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में जो वैल्यू होती है असेट्स की, एंड में आ करके क्या हो जाती है? ज़ीरो हो जाती है। अगर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं देगा तो हमें फॉर्मूला क्या पुट करना है? असेट्स की वैल्यू माइनस एस्टिमेटेड, आई मीन स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ। एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं, इस एग्जाम्पल से हम लोग उसको समझेंगे। ऑन अप्रैल 1, 2015, डेट को बहुत कंसीडर करके चलना है। अतुल गैस लिमिटेड परचेज्ड अ मशीन ऑफ ₹90,000। 1 अप्रैल को 90,000 रुपीज़ की एक मशीनरी खरीदी गई, जिसमें 6,000 रुपीज़ और 4,000 रुपीज़ उसको लगवाने में, इंस्टॉल करने में खर्च करे गए। तो एक मशीनरी हम लोग ने खरीदी कितने की? 90,000 की, और 90,000 में हम लोग ने 6,000 रुपये कैरेज में खर्च किए और 4,000 रुपीज़ उसकी इरेक्शन, दैट इज इंस्टॉलमेंट में खर्च किए। तो टोटल मशीनरी की जो कॉस्ट थी हमें पड़ गई 1 लाख रुपीज़। तो कॉस्ट ऑफ मशीनरी कितनी आ गई? 1 लाख रुपीज़, ठीक है। इफेक्टिव लाइफ ऑफ द मशीन, मशीन की जो एस्टिमेटेड लाइफ है, कितने दिन मशीन चलेगी, कितने दिन चलेगी? 10 ईयर्स चलेगी। इट्स स्क्रैप वैल्यू आफ्टर 10 ईयर्स, इसकी स्क्रैप वैल्यू कह रहे हैं ना, एंड आफ्टर 10 ईयर्स इट्स स्क्रैप वैल्यू विल बी, कितनी बचेगी इसकी स्क्रैप वैल्यू? ठीक। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, इस फॉर्मूले में इस सारी बातों को रखेंगे। यहाँ पर स्क्रैप वैल्यू आफ्टर 10 ईयर्स की दी हुई है, हमें कोई भी रेट ऑफ परसेंटेज नहीं दिया हुआ है डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के लिए। तो हम क्या, वही वाला फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ असेट्स। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ असेट्स? इट्स 1 लाख, ठीक। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? स्क्रैप वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू जो कि 20,000 मिल गई, अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ व्हाट? 10, राइट। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आ गया 8,000 रुपये। कितना आ गया? 8,000 रुपये, ठीक है। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना आ गया? 8,000 रुपये। कैसे आया? फॉर्मूले में पुट कर दिया। फॉर्मूला क्या था? कॉस्ट ऑफ असेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ। तो कॉस्ट ऑफ असेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ, 8,000 रुपये। अब अगर हमें अपने आप को श्योर करना है कि रेट कितना आया है, जब रेट निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, जितना हमने अमाउंट डेप्रिसिएशन का वहाँ कैलकुलेट किया, अपॉन वैल्यू ऑफ एट 100, दैट बिकम्स कितना परसेंट? यहाँ पे हमारा 8%, ठीक है। कितने आ गए? 8%। क्रॉस चेक करने का मैनर बता रहा है। अभी 1,08% इक्वल्स टू 8,000 रुपये। वी नीडेड ओनली दैट 8,000 रुपये, हमें सिर्फ ये 60,000 चाहिए थे, वो 8,000 हमें मिल गए। अगर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि परसेंट कितना है, तो कैसे निकालेंगे? डेप्रिसिएशन के अमाउंट को अपॉन असेट्स की वैल्यू इनटू 100, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब क्वेश्चन में कैसे इसको करेंगे ये देखेंगे। ओवरऑल हम लोग को जो पता होना चाहिए था वो पता है। असेट्स की वैल्यू कितनी है? 1 लाख रुपए। स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 20,000 रुपये। और एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है? 10। तो हमने निकाला तो 8,000 रुपये आर डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ गया। अब देखते हैं इसको क्वेश्चन में कैसे पुट करना है। फॉर्मेट आई टोल्ड यू, दिस विल बी द फॉर्मेट। हम लोगों ने 1 अप्रैल को, जब हम मशीनरी खरीदेंगे, हम एंट्री लिखेंगे यहाँ पे 1 अप्रैल, राइट। मशीनरी खरीदे थे 1 अप्रैल 2015 को, तो हम लोगों ने यहाँ पे 1 अप्रैल 2015।
जब मशीनरी खरीदेंगे, जिस टाइम हम कोई चीज़ खरीदेंगे बिजनेस में आएगी, उस दिन हम क्या एंट्री करेंगे यहाँ पे, टू बैंक, एंट्री हो जाएगी टू बैंक। मशीनरी एक खरीद रहे हैं, कितने की मशीनरी खरीदी थी, 90 की, जिसमें 6,000 और 4,000 रुपये खर्च किए थे। टोटल मशीनरी की कॉस्ट कितनी पड़ गई, 1 लाख। तो हमें उसी 1 लाख रुपीज़ की एंट्री करनी है। 1 लाख रुपीज़ की एंट्री हो गई हमारी, ठीक है। अब एक चीज़ और, एंड ऑफ द ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। एंड ऑफ द ईयर, हमारे बिजनेस में अकाउंटिंग एंड कब हो रही है, 31 मार्च को। और हमें कितने साल का डाटा प्रिपेयर करना है, 4 ईयर्स का, ठीक है। 4 ईयर्स का डाटा प्रिपेयर करना है 31 मार्च। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2016 31 मार्च, अप्रैल से चले 15 से कहाँ पे आके ख़त्म होगा, 16 पे। यहाँ पे बाई डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन आपने कितना चार्ज करके लगाया हुआ है, 8,000। तो यहाँ पे 8,000 रुपीज़ आपको मेंशन करने हैं और आपने वहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाया हुआ है, ठीक है। अब अप्रैल में इतनी वैल्यू थी, 8,000 रुपये वैल्यू ख़त्म हो गई। तो एंड ऑफ 2016 मतलब फर्स्ट ईयर में कितना वैल्यू बच गया, बाय बैलेंस कैरेट डाउन। पहले हमें क्या करना है, जितने के खरीदेंगे टू बैंक, जितना डेप्रिसिएशन लगा बाय डेप्रिसिएशन, और जो बैलेंसिंग फिगर है 1 लाख में से 8,000 जाएंगे, 92,000 विल बी द बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। दैट्स इट, 1 साल का हमारा अकाउंट प्रिपेयर हो गया। कितने साल बनाना था हमें, 4 ईयर्स का। अब चलते हैं हम लोग सेकेंड ईयर में। अब सेकेंड ईयर में जब हम लोग आएंगे तो क्या करेंगे, 2016 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितने रुपीस की ब्रॉड डाउन हो गया, 92,000 का। 92,000 वुड बी हियर, राइट। अब अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो गया, 2017 31 March. Again the same amount of depreciation because we are just treating with the straight line method. Straight line method क्या कहता है, सेम टू सेम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन लगता जाएगा, 8,000 रुपये अगेन, राइट। अब 31 मार्च 2017 नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, कितना बैलेंस बचा, बाय बैलेंस कैरेट डाउन। 92,000 में से और 8,000 हमें क्या कर देना है, लेस कर देने हैं। दैट बिकम 84,000, ठीक है। सेकेंड ईयर का खत्म। अब ऐसे ही करते करते हमें कितने साल के जाते जाना है, 4 ईयर्स तक में। अब हम किस में जाएंगे, थर्ड ईयर में जाएंगे। कितने अमाउंट से, 84,000 से। फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, फिर कहाँ पहुँच जाएंगे, 4th ईयर में। और हमें कितने साल का पूछा हुआ है, 4th ईयर का पूछा हुआ है। तो नेक्स्ट वी विल फॉरवर्ड विथ 84,000। 2017 1st April to balance brought down, it was 84,000, right? अब account closes on 31st March, the same 2018 31st March, ठीक है। बाय डेप्रिसिएशन कितने रुपीस का था, 8,000 का। सेम अमाउंट लगती जा रही क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन मेथड में जा रहे हैं। 31 मार्च, अब सीधे बैलेंस कर देते हैं, बाय बैलेंस कैरेट डाउन। कितने रुपीस थे, 84,000 में थे। अब कितने हो गए हमारे पास, 8,000 डिडक्ट हो गए, तो कितने बचे, 76,000। That's it. This is the way of solving depreciation by straight line method. This is the last year which we need to calculate. यहाँ पे April 1st to balance brought down. How much is the amount, 76,000. This has asked in question कि 4th year amount कितनी हो जाएगी. This is
76,000। ठीक है, क्वेश्चन में जो दे रखा था क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमने उसको क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। 8,000 का डेप्रिसिएशन बना, उस 8,000 के डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हुए 1 लाख से रिड्यूस करते हुए फोर्थ ईयर का अमाउंट पूछ रहा है कितना बनेगा, फोर्थ ईयर कितनी बैलेंस बचेगी, 76,000 रुपीज। ऐसे ही फिफ्थ ईयर पूछेगा तो हम 1 साल का और डेप्रिसिएशन लगा देंगे, सिक्स्थ ईयर पूछेगा 1 साल का और लगातार अगर 10 साल तक का करते गए तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। अभी ये एक मेथड है, अभी इसी मेथड में लेकिन अभी बहुत सारी चीजें और हैं। आप क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, अभी ये एक मशीनरी की बात कर रहा है, क्वेश्चन में हमें 2 या 3 मशीनरी भी दे सकता है, तो हम लोग M1 M2 M3 करके काम करेंगे, फिर बीच में ही मशीनरी को उठा के बेच देगा, पूछेगा उसमें प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। तो अभी ये चैप्टर इट्स नॉट एन इजी चैप्टर, आई मीन सो इट्स नॉट शॉर्ट चैप्टर, इट्स वेरी लेंथी चैप्टर। ठीक है, यहाँ पे ये शॉर्ट सी चौफरी नहीं है, ये बहुत लेंथी चैप्टर है, बट येस दिस इज द बेसिक स्टेप टू स्टार्ट द डेप्रिसिएशन। तो नीड टू कैलकुलेट दिस एंड सॉल्व ऑन योर कॉपी, और जब कॉपी में सॉल्व हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ आगे इसी मेथड में प्रोसीड करेंगे। ठीक है, टिल देन सॉल्व कर लीजिए क्वेश्चन, और अगर कोई दिक्कत है यू मे कॉल अस, राइट। थैंक यू सो मच।